All right, so we've come to the last section of this course. और इस पाठ्यक्रम का जो अंतिम भाग है वहां पे हम जा चुके हैं अभी. And so we may not cover everything, but I'll look at some important things. तो हो सकता है कि हम सारी बातों को ना देख पाए, लेकिन जो जरूरी बातें हैं उनको देखेंगे. So I told you that, last time I mentioned about church administration. तो हम लोगों ने अंतिम समय में हम लोगों ने देखा था कि कलीसिया का जो प्रशासन है उसके बारे में. So let me just give you an example from what we do at APC. तो जो एपीसी में हम करते हैं ऑल पीपल चर्च में, उससे आपको उदाहरण देने Now, दीजिए. I know that most of our churches are, most of us are planning to start a church or from a village. We may feel that this is not required, but remember that as time goes on, as time comes, you will need these things for a proper functioning of the church. तो मैं जानता हूं कि आप में से कई हैं जो कलीसिया को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी जो बातें हैं अभी मैं आपको जो कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है कलीसिया को स्थापित करने के लिए. All right. So the word administration means support and help. जो शब्द है प्रशासन करना, इसका मतलब होता है सहायता करना, उसके साथ बने रहना. This is the background of everything that happens outside in the ministry. तो यह जो पृष्ठभूमि है वो सारी बातों का है जो सेवकाई से बाहर होती है उसका. So let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. How many of you went online and registered for this short-term Bible college? आप में से कितनों ने जो ऑनलाइन जाकर इस शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए पंजीकृत किया है? Right. Everyone went online. सब लोग गए ना ऑनलाइन? Most of them. सब लगभग सब. Right. Now, did I put that online thing there? तो क्या मैंने वहां पे ऑनलाइन चीज को रखा? It was not me. मैं नहीं. There was another team involved. तो एक अलग दल था उसमें. The IT team was doing all of that. जो आईटी टीम है वो सब काम को कर रहे Now, हैं. when you registered, you would have got a call or a message from somebody. और जब आपने पंजीकृत किया होगा तो आपको कोई संदेश या कोई फोन आया होगा किसी से. Right. Okay, thank you for registering. Did you book the ticket? All of those things. तो लोग कहेंगे फोन करके, अच्छा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए धन्यवाद, क्या आपने टिकट बुक किया, ये सारी बातों. Maybe somebody else called you and informed you about the living arrangements. There's a hostel here. This is what it is. This is all of that. और फिर हो सकता है किसी ने आपको फिर फोन किया होगा और कहा होगा कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था है और ये सारी बातों को कहा. And then when you reached Bangalore, maybe some people came and picked you up. I don't know about that, but maybe some of them came and picked you up. तो जब आप बेंगलुरु पहुंचे तो हो सकता है कि आप लोग आके आपको पिकअप किया होगा, आपको आने में मदद किया होगा. Then you all reached here. और फिर आप लोग सब आए. All we are doing is coming and teaching. हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम आके सिर्फ पढ़ा रहे हैं. Now we are just here teaching. हम लोग यहाँ पे अभी सिखा रहे हैं. But most of the work was done by the other teams, administration teams. जो बहुत सारे काम है वे प्रशासनिक जो दल है उसके द्वारा और दूसरे दल के द्वारा किया गया. You see how it's connected. Now, if this team didn't do any work, nobody will be sitting here. अगर यह दल कोई काम अगर नहीं किया होता तो हम में से कोई यहाँ पे बैठे नहीं होते. And if nobody is sitting here, there's no point of me coming here and teaching. अगर यहाँ पे अगर कोई बैठा नहीं होता तो कोई भी बात नहीं बनती है कि मैं यहाँ पे आकर खड़ा हूँ और सिखाऊं. And if you look at it the other way, if now that this administration team has done everything, अब जब यह प्रशासनिक दल ये सब कुछ कर चुका है तो imagine that there's nobody here to teach. और आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला अगर नहीं होता It's a waste of time. You wasted all your time and money to come all the way till here. समय की बर्बादी, आपने पूरा समय बर्बाद किया, पैसे को बर्बाद किया वहां से यहाँ आने के लिए. So when you think about administration, have the vision and the mission in mind. तो जब आप प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो उस दर्शन को बात को आप मन में रखिए. Develop the plan, develop the strategy. आप कोई योजना बनाइए, आप कैसे तरकीबों को करेंगे, किस प्रकार के तरीकों को इस्तेमाल करेंगे उसको आप अपनाइए. Something that we do in PC is even before we plan this, we have already prepared the courses, we have prepared the teachers, we have prepared the budget,
how much it's going to cost. Everything has been prepared 1 year before. देखिए, इस कक्षा को शुरू होने से पहले हम लोगों ने जो पाठ को पढ़ाया जाएगा उसका और कौन कौन पढ़ाएगा उसको, उसका खर्चा कितना आएगा, वो 1 साल पहले ही हम लोगों ने योजना बना लिया था। Okay, the girls' hostel will go there. From there, okay, then on Sundays they'll go to church. They will see in the church what's happening. This is the number of courses. This is the timing. Everything has been planned. तो जी कि जो लड़कियों की जो छात्रावास है वो कहाँ रहेगी, उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा, इस समय को फॉलो किया जाएगा, फिर वो कलीसिया जाएंगे, कैसे होता है सब देखेंगे, वो वापस आएंगे, तो सारी चीजों की योजना बना चुकी है। That's why you need church administration. इसीलिए आपको कलीसिया का प्रशासन का बहुत Now I जरूरत know in your churches maybe there are volunteers doing it. है। तो हो सकता है कि आपके कलीसिया में हो सकता है कि जो सहयोगी है वे कर रहे हों, But eventually you can build up leaders and give them these opportunities. तो फिर आप अगुओं का निर्माण कर सकते हैं, उनको उठा सकते हैं Now- और आपको उनको वो मौके दे सकते Now, हैं। if you go to that page, there's a small picture there. अगर आप पेज Next नंबर page. अगले भाग में जाएंगे, हिंदी में 248 So you पर, see that picture there. It says senior pastor, तो वहां पे आप देखते हैं कि एक वरिष्ठ पासवान है, associate pastors, सहायक पासवान है, assistant pastors. फिर पासवान है, They form the pastoral team. और फिर वे पासवानी की एक टीम दल Under the बनाकर, pastoral team, और उस पास्टल टीम में, I won't say under, but along with the pastoral team, और उस पासवान के टीम के साथ साथ is a ministry team, volunteer teams, and church staff. और सेवकाई के दल जो और जो स्वेच्छा से मदद करते हैं वे, और चर्च के जो कर्मचारी है वे। So the ministry teams, the volunteer teams, church staff, they look at all the administration. जो सेवकाई टीम है, जो स्वयं सेवक टीम है, और जो कलीसियाई स्टाफ है, कर्मचारी है, वे सब मिलकर प्रशासन के काम को देखते हैं। The pastoral team looks after the teaching and ministering of the word of God. और पासवानों की टीम है, वह कलीसिया में वचन की सेवकाई को और उसकी वचन को पढ़ाने जाने की शिक्षा को वो देखता है। Right? So as a teacher of the Bible college, I'm not worried whether lunch is ready. तो एक बाइबल कॉलेज के शिक्षक के होते हुए मैं यह बात की चिंता नहीं कर रहा हूँ कि दोपहर का भोजन तैयार है या नहीं। My focus is, okay, I have to prepare the word, I have to prepare what I'm teaching, deliver it. और मेरा जो ध्यान है कि मुझे अच्छे से देख के जाना है, कि ध्यान केंद्रित करके उसको अच्छी तरह से लोगों को सिखाना है। All the other administration, there's another team looking after. और दूसरे जो प्रशासन के काम है, एक दूसरा दल है जो उसका देखभाल कर रहा है। Now we talked about being a strong leader, so we won't go there. और हम लोगों ने मजबूत अगुवा बनने के लिए और पहले से ही बात कर लिया है, तो हम लोग I want to वहां talk नहीं about जाएंगे। I want to talk about finances, keeping your accounts और straight. और जो आपका जो अर्थ को पैसे का हिसाब रखना है, उसको किस प्रकार आप अच्छे से रखें, Now- उसके बारे में बात करेंगे। Money is not bad. देखिए, पैसा बुरा नहीं है, We need money to do ministry. और सेवकाई करने के लिए पैसे रखना The बहुत Bible जरूरी है। says the love for money is the root of all evil. बाइबल बताती है कि पैसे के लिए प्रेम वो हर एक बुराई का जड़ होता है। So when you have a ministry, keep proper accounts. तो जब आपका एक सेवकाई होता है तो अच्छे से हिसाब किताब रखिए, Right? Follow the legal requirements. और जो कानूनी जरूरत है उसको आप उसका पालन कीजिए, Learn to spend in the right way. और अच्छी सही तरीके से खर्च करने के लिए कैसे करते हैं वो Don't be in सीखिए, a hurry to spend money. और जल्दीबाजी में खर्च करने को आप मत तैयार रहिए। I met a pastor many years back. He was very sad और बहुत साल पहले एक पासवान बहुत दुखी थे, because he had saved up a lot of money, church money. और उसने बहुत सारे कलीसिया के पैसों को बचा कर He रखा wanted था, to buy a land. क्योंकि वह जमीन खरीदना चाहता The था। land was available, and so he was so excited, so happy. He gave a initial amount, and then eventually he bought the land. और वह जो पहले की जो पैसे देना पड़ता है जमीन लेने के लिए, वो उसको दे दिया और जमीन को खरीद लिया। But after he bought the land, he found out there's a litigation, there's a case going on the land. और जब वह जमीन को खरीद चुका था, तब उसको पता चला कि कोई कानूनी मामला उस जमीन के ऊपर चल रहा है। So he started to construct. और वह बनाना इमारत शुरू किया। 4-5 people came and said, "This land is on my name." तो 4-5 लोग आके कहें कि ये तो जमीन मेरे नाम पर है। Then he saw that the land is on 5 people's name. और फिर उसने देखा कि ये जो जमीन है वो 5 लोगों के नाम पर है। He said, "No, I bought it. I want to build church here."
तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो खरीदा है, मैं यहाँ पर कलीसिया बनाना चाहता हूँ। He said, "You will never build a church here. वो कहता है कि वो लोग कहे कि तुम कभी भी यहाँ पे This land is कलीसिया on नहीं case for the past so many years." और यह जो जमीन है वो किसी कानूनी कार्रवाई के चलते बहुत सालों से यहाँ पर है। Imagine how he would have felt. तो आप कल्पना कीजिए कि कैसा उसको लगा होगा उस समय। And you know, in India, if it's a land case, it will go on for years and years and years. और आप जानते हैं कि भारत देश में अगर जमीन जायदाद का मामला है तो वो सालों 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 चलता रहता है। Don't be in a hurry. तो इसलिए जल्दबाजी में मत रहिए, Learn to do things the right way. सीखिए कि चीजों को सही तरीके से कैसे किए जाए। Another thing is, don't go over your budget. और जो आपने निर्धारित किया खर्चे का, उससे ऊपर मत जाइए। See, God is a big God. Dream big. और परमेश्वर हमारा बड़ा परमेश्वर है, आप बड़ी ख्वाहिश रखिए। God can do big things. और परमेश्वर आपको बड़े काम कर सकता है। But also God has given us wisdom. लेकिन परमेश्वर ने हमको बुद्धि भी दिया है। So I remember I met this pastor. He said to me, "I want to buy 5 acres of land." तो मैं एक पासवान से मिला जो कहता था कि मैं 5 एकड़ जमीन की खरीदना चाहता हूँ। I said, "Very good. मैंने कहा बहुत अच्छा, Good vision." बहुत अच्छा दर्शन है। So he said, "You pray, pastor. I want 5 acres." और उसने कहा कि पास्टर प्रार्थना कीजिए, मैं चाहता हूँ 5 एकड़ जमीन। I said, "When do you want to buy?" मैंने कहा कब तुम खरीदोगे? Maybe by next year. हो सकता है अगले साल तक। I asked him, "How many people in your church? How big is your church?" मैंने पूछा कि तुम्हारे चर्च में कितने लोग हैं, कितना बड़ा चर्च है तुम्हारा? 25 people. उसने कहा 25 लोग। So why you want 5 acres for? मैंने कहा 5 एकड़ जमीन का क्या करोगे तुम? Now who's going to give you the money for 5 acres? तो कौन उसको पैसा देगा उस 5 एकड़ He जमीन के said, लिए? "God will give." वो कह रहा है परमेश्वर देगा। I said, "Yes, God will give, but God is also giving you wisdom. Think, why do you need this right now?" तो मैंने कहा कि ठीक है परमेश्वर देगा, लेकिन परमेश्वर ने तुमको बुद्धि दिया है कि तुमको इतना 5 एकड़ का जमीन अभी क्यों चाहिए? It's good. God can even work that way. ये अच्छी बात है, परमेश्वर उस तरीके से भी काम कर सकता है। But we can't be in a hurry. Say, "God, give me money. I want 5 acres." It doesn't work that way. तो हम जल्दीबाजी में ना रहें, कहे कि परमेश्वर मुझे पैसे दीजिए, मैं जल्दीबाजी में और करके और 5 एकड़ जमीन चाहिए, तो ऐसा नहीं करना You all चाहिए। went to see the land, no? आपने जमीन को देखा ना, जो APC's land. एपीसी का जो जमीन है You know, उसको when देखा। we started searching, आप जानते हैं हम लोगों ने कब खोजना शुरू किया? seriously searching, गंभीरता से खोजना कब शुरू किया? 2012. 2012 में। Seriously searching from 2000 and almost 2012. और लगभग 2012 में हम लोगों ने गंभीर होके जमीन को खोजना शुरू किया। How many years? कितना साल हो गए अभी? 12 At साल। the right time, God will give you the right place in the right through the right people. तो सही समय पर परमेश्वर आपको सही जगह देगा आपके सही लोगों के द्वारा। So even when we saw it, you know, we took the lawyers, and whole team was involved in all of that. तो जब हम लोग उस जमीन को देखा तो हम लोग वकील को ले गए, एक पूरा दल उसमें था सब बातों को देखने के लिए। You know what they did is they went back 10 generations. और उन्होंने कहा कि यार जो 10 पीढ़ी के पहले पीछे गए वो, to see if there's any case in any of that. यह देखने के लिए कि क्या कोई केस या मामला दर्ज है उस जमीन में All किसी the से। papers are correct. तो जो कागजात है क्या वे सही Went कागजात to है? the local authorities. वे जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके पास गए, Went to the police station. फिर वह पुलिस कर्मी के All पास गए, these many things had to be जी, done. पुलिस स्टेशन के पास गए और सारे चीजों को उनको करना पड़ा। When we felt that everything was all right, जब उनको यह प्रतीत हुआ कि सब कुछ अच्छा है, we made the purchase. तब जाकर उन्होंने खरीदा। So why am I sharing this? So don't be in a hurry to get something big. तो आप जल्दीबाजी ना करें कि कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए। Believe God for big things, परमेश्वर को बड़े चीजों के लिए विश्वास कीजिए, but God works in steps. लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वह पड़ाव में काम करता है, अवस्थाओं में काम करता है। Very important role. बहुत बहुत जरूरी नियम Put everything in writing. कि सब बातों को आप लिख के रखिए। If you have a church and when 5 RSS people come and destroy the church, तो अगर आपका कोई कलीसिया है और 5 आरएसएस के लोग आके अगर आपका चर्च को तहस नहस कर देते हैं तो and then you say, "Where's the trust? तो आप कहेंगे कि ट्रस्ट कहाँ है? Where is your religious? Who told you to start church?" तो कौन तुमको कहा कि तुम कलीसिया शुरू करो? Jesus told me. तो आप कहेंगे यीशु ने कहा। Where is Jesus? उसने कहा यीशु कहाँ है? He's in heaven. वो स्वर्ग में है। So you tell him to come and talk to me. और उनको कहो कि वो स्वर्ग से आए मुझसे बात करें। I don't want
all trust. I don't want that trust. I want this trust. तो मैं उस संस्था को नहीं चाहता हूँ, मैं इस संस्था को चाहता हूँ। Put everything in writing. हर एक बात को लिख लिख के रखिए। You know, even if when I was in Mangalore, I used to buy, the toiletries, to clean the toilet and to air fresheners, all of this. Anything that I buy, जब मैं मैंगलोर में था और अगर मैं कुछ भी खरीदता था शौचालय के जरूरत के for काम the church, कलीसिया के लिए, उसको I'll put it down in writing. मैं उसको लिख के रखता था। I put it down in an Excel sheet, put it down in writing, so that, and then email it to the other teams so that everyone know where the monies come, how the money is being spent. और उसको फिर मैं लिख के रखता था ताकि मैं दूसरे दलों को भी भेज सकूं कि वे जान पाए कि कहाँ से पैसे आए You know, और कहाँ खर्च किए you know गए। why many pastors are falling in trouble, especially in the West? आप जानते हैं कि पश्चिम के देशों में बहुत सारे पासवान परेशानियों में क्यों पड़ रहे हैं, समस्याओं में क्यों पड़ रहे हैं? They are using the church money, not keeping accounts. वे कलीसिया का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हिसाब किताब किए बिना, And so they're getting caught. इसलिए उनको पकड़ा जा रहा है And then it becomes a disgrace to the church. और फिर वो कलीसिया के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। So have that habit. Put everything in writing. तो वो अभ्यास रखिए, वो आदत देखिए, हर एक बात को लिख के रखिए। See, remember I told you about the person who wanted to start a life group yesterday? I told you. मैंने कल बताया था आपको ना कि एक व्यक्ति जो है वो गृह कलीसिया शुरू करना चाहता था, She cut the call. उसने कॉल को काट दिया। You remember, yes or no? आप याद करते हाय ना? I sent an email after that. फिर मैंने एक ईमेल भी लिखा उनको, This is what happened. यह जो हुआ। So that, if she calls and says, Paul didn't give me an opportunity. अगर वो कॉल फोन कर कहती है कि पौलुस ने कुछ मौका ही नहीं दिया मुझे, And I'll say, no, I gave you opportunity. I called you, no. तो मैंने कहा कि मैंने तुमको मौका दिया था, मैंने तुमको फोन किया था ना। Where's the phone call? We don't have any phone call. अब एक वो कहेगा फोन कॉल कहाँ है, तो फोन कॉल है ही नहीं। Send my email. तो मेरा ईमेल देखो, I've emailed the entire pastoral team. Everyone know. मैं जितने भी पासवानों के दल है उनको भी रख के मैंने ईमेल भेज दिया, सब लोग जानते हैं। This person called me. यह व्यक्ति ने मुझे फोन किया, These are the things that happened. ये सारे चीजें जो हुई, This is what happened in the call. यह कॉल में क्या क्या हुआ, And so this is how the call ended. इस प्रकार कॉल समाप्त हुआ। Now, even if she goes to the end, other pastors and say, Paul did like this. अगर वह किसी और पास्टर के पास जाके कहते कि अरे देखिए पौल ने मेरे साथ ऐसा किया, The other pastors will say, what is your name? तो पास्टर से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है? We know about this. हाँ, हम इसके बारे में जानते हैं। You see what's happening? अब देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? You're putting everything on writing. आप सब कुछ दस्तावेजित लिख के रख रहे हैं, So be wise that way. तो उस तरीके से आप एकदम बुद्धिमान बन Okay, जाएं। so organizing small groups, we won't spend too much time here because we already know about life groups. और लाइफ ग्रुप के बारे में हम ज्यादा नहीं समझ के, छोटे समूह को संगीत करना के बारे में हम लोग सीख लिए हैं, ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। Right? So if we go to chapter 28, we see mega church. और हम जब 28 अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं विशाल कलीसिया को। Mega church is basically churches with 5,000, 10,000 people. और जो विशाल कलीसिया है वहां पर वो कलीसिया जो 5,000 लोगों से 10,000 लोग के रहते हैं। We want to become like a mega church as well. और हम भी एक विशाल कलीसिया बनना चाहते हैं। But right now we have multi sites. We have APC north, south, east, west. और हमारे पास जो अभी है वह है बहुत जगह है, जैसे एपीसी उत्तर पूर्व दक्षिण। Like what I said, right? We are one church, different locations. तो हमारा एक कलीसिया है अलग अलग जगहों पर। It's not like you are there, I am here. No, we're all one. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां हैं हम यहाँ हैं, नहीं, हम सब एक है। So even in especially in villages or towns, if you're doing ministry, you may have different churches. तो गांव में या छोटे शहरों में आप अगर सेवकाई कर रहे हैं तो आपके अलग अलग सेवकाई हो सकती है। But always develop this attitude of being one. तो आपके अलग अलग कलीसिया हो सकती है, लेकिन हमेशा आप ऐसा एक मनोवृत्ति बना के रखिए कि आप सब एक हैं। Right? So whether it is in the town, whether it's in the village, the ministry is one. तो क्या कि अगर वो सेवकाई गांव में क्यों ना हो, छोटे शहर में क्यों ना हो, लेकिन आपकी सेवकाई क्या है? एक है। Okay, let's go to chapter 30 because the previous chapter is just a repeat.
और आइए हम तीसरे अध्याय में जाएंगे, क्योंकि उससे पहला जो अध्याय है वह एक पिछले पाठों का दोहराना है। right? So how do we shepherd the city-wide church? तो कैसे हम लोग जो कलीसिया है पूरे शहर में उसकी सेवकाई करते हैं। Now remember that there will come a time that the ministry is not only, remember the apostolic stage, तो आप जो प्रेरितों का जो भाग है, पड़ाव है, उसको आप याद करते हैं। right? So it's no more staying in my church, my place, my people. You're stepping out, doing things outside. तो अब यह नहीं है कि मेरा कलीसिया, मेरे लोग, मेरा कलीसिया, मेरा जगह, ऐसा नहीं है। अब आप बाहर निकल के आप सेवकाई कर रहे Something हैं। that we do in APC is we always go reach out in different places. जो बातों को हम करते हैं एपीसी में, वह है कि हम हमेशा अलग जगह जाकर हम सेवकाई करते हैं। Right? So August 31st, I'm in Mangalore, अगस्त 31 को मैं मैंगलोर में हूँ, and September 25th, I'm in Hyderabad, और 25 सितंबर को मैं हैदराबाद में हूँ, and I'm in Delhi फिर मैं दिल्ली में हूँ in October, अक्टूबर में, then Mysore in again September, सितंबर में फिर मैसूर में हूँ, Odisha, फिर I think in उड़ीसा में हूँ November, नवंबर में, December, I'm in so I think one of the places. जी I think in Maharashtra, Mumbai somewhere. So दिसंबर में मैं महाराष्ट्र मुंबई में हूँ। so many places. तो ये सारे जगह है। We go, we do conferences, we make sure we build the body of Christ. हम जाते हैं, सभाओं को करते हैं, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि मसीह के देह को हम उसका निर्माण करें। Now many of them will go back to their own churches. और उनमें से बहुत अपने कलीसिया में वापस जाएंगे। Right? So in our mind, it's not okay. We're building APC. तो हमारे मन में यह नहीं है कि हम कहते हैं कि ठीक है हम एपीसी को बना रहे हैं। We're not going to Mysore to start APC. हम मैसूर में एपीसी को बनाने नहीं जा रहे हैं। We are going to serve, to build unity. तो हम जा रहे हैं सेवा करने के लिए, एकता बनाने के लिए। We want to see the city. We are praying for the city, transformation of the city. हम लोग उस शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Let me tell you this. In 2012, मुझे बताने दीजिए आपको कि 2012 में we came to Varanasi. हम बनारस गए थे। And we were doing like a 3 days conference. वहाँ पे 3 दिन Kingdom की सभा, builders. 3 दिन की सभा कर रहे थे, जो राज्य को निर्माण करता है So there उनके लिए। was kingdom builders here and a youth conference happening the other side. और जो राज्य को बनाने वाले और युवाओं का जो सभा था वो अलग चल रहा Then था। we thought, okay, why don't we have extended time of worship? तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और ज्यादा समय निकाले हम आराधना के लिए। Right? Because worship transforms the place, the city. तो आराधना उस जगह को, उस शहर को बदल देती है। So many of the organizers said, no, don't keep full night of worship. Nobody will come. तो जो आयोजन करता थे वह कहे कि पूरे रात भर की आराधना मत रखिए, कोई नहीं आएगा। Even if they come, they'll go back. अगर वे आएंगे भी तो वापस चले जाएंगे। Few hours they'll stay and go back. अगर आप कहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो वे चले जाएंगे। So we said, okay, let's try. तो हम लोगों ने कहा चलो कोशिश करते हैं। So we had the hall with us. So we told everyone, see, we're going to have worship. And if you want to invite people around in this place, you can invite them. But the worship is going to be there for the whole night. तो बड़ा कमरा उपलब्ध था, तो हम लोगों ने सबको कहा कि पूरे रात की सभा और आराधना रहेगी, आपको आना है। तो हम लोगों ने ऐसा करके आमंत्रण दिया। During those days, only 2 of them would lead worship in Hindi. और उन दिनों में सिर्फ 2 लोग ही थे जो हिंदी में आराधना की सेवकाई करते थे। Pastor Jay Kumar, पास्टर जय कुमार and I used to lead. और मैं। So we started at I think 7 or 8 p.m. I don't remember. तो हम लोगों ने 7 या 8 बजे रात को शुरू किया था। हम मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। The hall was packed. जो हॉल था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। 350-400 people had come. 350 से 400 लोग आए गए थे। They were there the whole night. वे वहां पे पूरी रात थे। Till morning there was worship and they were crying and God just began to work there. और सुबह तक लोग वहां पे थे, वे रो रहे थे। परमेश्वर ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। In between I was asking for glucose. तो बीच में मैं अपने लिए ग्लूकोज मांग रहा था। Imagine 3 hours of worship.
आप कल्पना कीजिए 3 घंटे की आराधना, Then the worship is going on. I'll take out the guitar, give it to Pastor Jakes. I'll go sit down for some time. और फिर जैसे आराधना चलता था तो मैं गिटार निकाल के पास्टर जेक को दे देता Then था, he'll say, okay, he'll give me the guitar. I'll come back. The team is all sitting. और जो जो दल है वो बैठे रहते थे और मैं जैसे गिटार लेकर हम लोग आके फिर वो आते थे, फिर हम उनको गिटार देते थे ऐसे कर। Drummer is sleeping off. और जो ड्रम बजाने वाला है वो पूरा सो रहा है, So I said, tell him, you get up. I'll play the drums first. और मैं कहता था कि तुम उठ जाओ, अब मैं बजाऊंगा ड्रम को। But we had good fun. लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा We did it. और हमने उसे किया। And there was some change. I felt that something after that we got so many opportunities in Varanasi. और उसके बाद हम लोग देखे कि बहुत कुछ बदल गया और हमको बहुत सारे मौके मिले बनारस में। Many pastors said we'll have pastors meetings. We all, there's this hatred. Everything is gone. We want to know more about God. और वे जितने भी बातें थी, घृणा करने की बातें थी, वो सारी चली गई। वो चाहते थे कि सब मिलकर हम लोग ऐसे पास्टरों की मीटिंग रखें और सब बातें नहीं हो गई। Right? The kingdom mindset came in. और जो राज्यत्व का जो मनोवृत्ति है वह आ गया। There was a unity through relationships. और संबंध के जरिए वहां पर एकता स्थापित हुई। Right? And it's very important to build relationships between pastors and leaders. और बहुत जरूरी है कि हम पासवानों के साथ और अगुओं के साथ एक अच्छा संबंध बना के Not रखें। because they are inviting us, but because we are called to live in a good relationship with each other. इसलिए नहीं कि वे हमको निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन हमको बुलाया गया है एक अच्छे संबंध बनाने के लिए, रखने के लिए, एकता में रहने के लिए। Right? ठीक है? So you can think about ideas and strategies. How can you go out? Maybe if you're still planning to start a church, give it some time. तो अगर मान लीजिए कि आप अगर कलीसिया का रोपण का योजना बना रहे हैं तो थोड़ा समय दीजिए इसके लिए। But after that, look at how you can go out and be a blessing. तो फिर आप देखिए कि आप कैसे बाहर जा सकते हैं और एक आशीष का कारण बन सकते हैं। Right? So the next chapter 31 is urban evangelism. We talked about this in the evangelism topic, so we'll not go into that. और 31वां अध्याय है शहर में सुसमाचार प्रचार के कार्य के बारे में, जिसको हम लोगों ने जीवन शैली सुसमाचार में जब विषय में पढ़ा था, तो हम इसमें नहीं जाएंगे अभी। Okay, very important point. I want you to go to the chapter on church planting, chapter 32. 32 अध्याय कलीसिया स्थापन का जो अध्याय है, मैं चाहता हूँ आप वहां पे जाएं। Go to church planting practical guidance. और जो स्थानीय कलीसिया का जो अभ्यासिक मार्गदर्शन है उसमें जाइए। So we'll just learn this and then we'll bring this course to a close. और फिर इसको हम सीखेंगे और इस पाठ्यक्रम को हम लोग आज समाप्त करेंगे। Okay, how many of you are planning to start a church? तो आप में से कितने हैं जो एक कलीसिया बनाने के लिए सोच रहे हैं, स्थापना करने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh wow! So your own local church, huh? अपना स्थानीय कलीसिया क्या? New one from zero. एकदम शून्य से नया एकदम। I'm not talking about your father's church, mother's church, all that. मैं आपके पिता का कलीसिया, माँ की कलीसिया, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। My pastor's church, I will take over. मेरे पास्टरवान का कलीसिया, मैं उसको You're फिर planning to start जो एकदम शुरू करना है, एकदम from the ground. एकदम भूमि से। Put your hand up. अपने हाथ को उठाओ, ऊंचा उठाइए। Now the hand has become lesser. अभी हाथ थोड़े कम हो गए। Okay, yeah, good. Put your hands down. Okay, this is going to help you. Okay, some practical guidelines. देखिए, यह आपको मददगार साबित होगी, कुछ तैयारी जो आपको करनी पड़ेगी। Spiritually, you have to do one thing. आत्मिक रूप से आपको एक चीज करनी है, Kneel down and pray. घुटने पे आइए और प्रार्थना कीजिए। That is the spiritual things. यह आत्मिक बात है। Without that, nothing will happen. उसके बिना कुछ नहीं होगा। Practical things I'm saying. और जो अभ्यासिक बात है उसको कह रहा हूं मैं। Pray, survey, and plan of action. और जो भू क्षेत्र है उनका, उसके योजना बनाइए। So you pray. आप प्रार्थना कीजिए। Say, God, this is what I'm want to do. और कहिए कि परमेश्वर यही मैं चाहता हूँ कि मैं करना चाह रहा हूँ। And then you get direction from God. आप परमेश्वर से आप मार्गदर्शन लीजिए। So you take a survey. फिर आप एक सर्वेक्षण करते हैं। Give me a name of a place, no? एक जगह का नाम बताइए आप। सुल्तानपुर। Sultanpur. Yeah. Sultanpur. Who's from Sultanpur? सुल्तानपुर से कौन है? Okay, भाई लोग Sultanpur.
Where is सुल्तान, this? ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में UP. जी, Okay. Sultanpur. सुल्तानपुर में। Now you want to start a church here. आप यहाँ पे एक कलीसिया शुरू करना चाहते हैं। After praying, God says, okay, you start in Sultanpur. आप प्रार्थना के बाद परमेश्वर कहता है कि आप सुल्तानपुर में शुरू कीजिए। Now what you have to do, you have to survey the land. तो आपको वहां पर उस जगह का आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा। First, is it a city? Is it a town? Is it a village? क्या एक शहर है, एक छोटा नगर है या एक गांव है? Then you see how many people are literate. तो आप ये देखिए कि वहां पर कितने लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, What is the work? और वे कौन कौन से काम करते हैं, What is the main religion that's there? और वहां पर जो मुख्य धर्म है वे क्या है, How many, approximately, what is the youth strength there? और वहां पर जो युवाओं की जो लगभग संख्या है वो क्या है, What are the families? What kind of families are there? और किस प्रकार के परिवार है वहां पर, What are the problems that are happening in that place? और उस जगह पे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। You do a survey of the land. तो उस जगह का आप सर्वेक्षण कीजिए। Now, after 2 months, और 2 महीने के बाद you should be a professional area counselor of Sultanpur. और आपको उस जगह का एक क्षेत्र का काउंसलर, परामर्श देने वाला बन जाना चाहिए इस जगह का, You should सुल्तानपुर। know everything about Sultanpur. और उस सुल्तानपुर के बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए। Okay, now you make the plan of action. और फिर आप अपना जो कार्य है उसको करने का योजना बनाते हैं। I want to first reach out to the youth. तो आप सबसे पहले जो युवा है उसके पास This जाइए। is an example, okay? You can choose what you want. देखिए ये सिर्फ उदाहरण है, आप चुनाव कर सकते हैं आप क्या चाहते हैं। So now, where do I have the church? तो आप देखिए कि यहाँ पे कलीसिया कहाँ है। So I can think, okay, my house is free. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा घर अभी उपलब्ध है। Okay, so 6 p.m. on Friday. तो 6 बजे शाम को शुक्रवार को, Okay, we will have prayer, not prayer, but we'll have worship in the house. तो प्रार्थना नहीं लेकिन आराधना होगा 6 बजे मेरे घर में। Or if you can save up money, hire a place for 1 day. अगर आप पैसे बचा सकते हैं तो एक दिन के लिए एक जगह भाड़े पे लीजिए। And then you have worship and prayer, worship night or youth concert. तो आप अगर युवाओं का जो कॉन्सर्ट है वो, या फिर आराधना का रात वो रखिए। That's your plan. वो आपका योजना है। Okay. Then what you have to do is you must also look at what are the churches close by. फिर आपको ये भी देखना है कि वहां पे जो कलीसियाएं हैं आसपास वो कहाँ है। Maintain. If you can, go meet the pastors, tell them I want to start, I need some help. I need some help, meaning give me some guidance, give me some wisdom. तो आप वहाँ के जो स्थानीय पासवान है कलीसियाओं के, उनसे जाके मिलिए, आप उन्हें कहिए कि आप मदद कीजिए। मदद करने का मतलब कि आप मुझे कुछ बुद्धि दीजिए, कुछ तरीकों को दीजिए कैसे जाके हम उनसे मिलें। Now some pastors will say don't start. कुछ पासवान कहेंगे शुरू मत करो, Some people will say start. कुछ लोग कहेंगे शुरू करो, Some pastors will go the extra step and give you some guidance and give you some help. और कुछ पास्टर तो ज्यादा आपकी ओर आकर कहेंगे कि आपको सहायता करेंगे और आपको बुद्धि देंगे। Now you've had the prayer. Youth concert is over. तो यहाँ पे जो यूथ कॉन्सर्ट था जो आपने रखा था वह समाप्त हो गया। Example, 50 people came. उदाहरण के रूप में मान लीजिए 50 लोग आए। On that day you say, hey, every Friday at 6 p.m. we are meeting in this place. तो उस दिन आप कहें कि हर शुक्रवार को 6 बजे शाम को उस जगह पे हम मिल रहे हैं। See, in this time, no, you'll be alone. देखिए इस समय ना आप अकेले रहेंगे। You may have 2-3 friends, then that's good. और आपके साथ 2-3 दोस्त रहेंगे, ठीक है कोई बात। But then you say 6 p.m. is prayer. तो आप कहेंगे कि 6 बजे प्रार्थना है, So they'll come. फिर वे लोग आएंगे। Out of 50, 10 people will come. तो 50 में से 10 लोग आएंगे। So every Friday you have prayer. तो हर शुक्रवार को आपके घर में प्रार्थना है। Prayer means don't make it only screaming and shouting. It should be worship, word, and pray. देखिए प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि आप एकदम जोर से चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये नहीं। यह वचन होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, आराधना होना चाहिए। Right? Now, it will slowly become, if God will start doing miracles and it will slowly become 25 people. तो अगर परमेश्वर चमत्कार करना शुरू कर दें
तो आस्ते आस्ते ये 25 लोग हो जाएंगे। That's your initial stage. यह आपका प्रारंभिक पड़ाव है। When you reach 25 people, you can't fit in the house. अब जब 25 लोग पहुंच जाएंगे तो आप घर में समा नहीं पाएंगे, So then you have to look out for something तो else. फिर आपको देखना पड़ेगा कुछ बड़े जगह के लिए, Ask God to open the right door. और परमेश्वर को मांगे कि परमेश्वर सही दरवाजा आपके लिए खोले। And when He opens the door, you go. It's God's church. He'll open the door. You don't worry. देखिए, ये परमेश्वर की कलीसिया है, वह दरवाजे को खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। Right? So you go from a house church, you go into a bigger place. और एक गृह कलीसिया से आप जाते हैं एक बड़े जगह पर, And then you build from there. और फिर वहां से आप जाके उसका निर्माण कीजिए, You start having worship. और फिर आप आराधना शुरू कीजिए, You start having prayer, Bible study, और फिर बाइबल का अध्ययन शुरू कीजिए, life group, फिर लाइफ ग्रुप शुरू कीजिए, everything that you want to do in the church, you start doing it. और कलीसिया से जो आप शुरू करना चाहते हैं, यहाँ से आप शुरू करना शुरू कर दीजिए। And then when time will come, you'll have to buy your land. और फिर समय आएगा जब आपका अपना जमीन आपको खरीदना होगा, When you're buying the land, first you tell the sellers, I'm building a church here. और जब भी आप जमीन खरीदने जाएं, सबसे पहली बात आप जो जमीन बेचने वाला है उसको कहें कि हम यहाँ पे चर्च बनाने वाले हैं, कलीसिया बनाने। If they say no, then don't buy it. अगर वे कहें नहीं तो उसको खरीदिए मत। Right? Don't buy and then say, I'm actually building church. खरीद के बाद में मत कहिए कि मैं तो यहाँ पे कलीसिया बनाने वाला हूँ। And don't feel why should they be worried what I'll do in this place? It's my land. No. ऐसा भी मत सोचिए कि उनका क्या, ये तो मेरा जमीन है, मैं जो चाहूँ मैं यहाँ पे बनाऊं। The enemy is waiting for a way to destroy churches. और शत्रु इंतजार कर रहा है, तरीकों को खोज रहा है कि कैसे वह कलीसिया को नाश करे। Do an agreement, फिर एक सहमति बनाए, buy the land. और उस सहमति वसीयत के द्वारा आप जमीन को खरीदें। Then you go back to your knees. और फिर घुटने पे जाएं, Keep praying. प्रार्थना करते रहें, Ask God to give me money to build a church. और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर पैसे दे ताकि मैं कलीसिया का निर्माण कर पाऊं। God will do it. फिर परमेश्वर करेंगे उसे। You don't look at yourself. Don't look at I'm not capable. You are capable. आप ऐसा मत सोचिए कि आप योग्य नहीं हैं, आप योग्य हैं। The God inside you will do bigger things than what we can imagine. परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है वो बड़े काम को करेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। Okay, I'm going to close this entire course with one verse. मैं ये सारा जो पाठ्यक्रम है उसको एक वचन से मैं खत्म करना चाहता हूँ। This is the verse that I always stand on. और यह जो वचन है जिस पर मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। Ready? You have the mic with you? Who has the mic? किसके पास माइक है? तैयार है? Who's going to read? कौन पढ़ेगा इसे? Okay. Brother will read. This is the verse I'm going to end with, and I feel that this is the verse that I live by. तो यह वचन के द्वारा हम पाठ्यक्रम को खत्म करेंगे, और मैं कहता हूँ कि इसी वचन को थाम कर मैं जीता हूँ। When I wanted to get married, I said, this is the verse I'll put on my wedding card. और जब मैं शादी करने जा रहा था तो मैंने कहा कि जो अब मेरा जो शादी का कार्ड है उसमें भी यही वचन रखूंगा। When I enter my house, it's the first thing that I see. और जब मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ तो यह पहली चीज को मैं देखता हूँ। This is that verse. Ephesians chapter 3 and verse 20. और इफिसियों का अध्याय 3 और उसका 20वां वचन। तीन का 20 चेक। Ephesians 3:20. इफिसियों 3 का 20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Now to him और उसके द्वारा उसमें who's able to do जो योग्य है सब करने के, exceedingly और उसके सामर्थ्य के अनुसार, abundantly और उसके सामर्थ्य के अनुसार, more than I can ask, जितना मैं उससे पूछ सकता हूँ, more than I can think, जितना मैं सोच सकता हूँ, more than I can imagine, जितना मैं कल्पना कर सकता हूँ, by the power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा that's working in me. जो मेरे अंदर काम करता In है, Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन।
this is what he can do. यही आपके जीवन में कर सकता है। I may think that, okay, I want 100 people in church. मैं सोच सकता हूँ कि कलीसिया में मैं 100 लोग ही चाहता हूँ। God is saying, hey, I'll give you 500. परमेश्वर कहता है कि अरे मैं तुमको 500 दूंगा। I'm able to do more than you can ask. जितना तुम पूछते हो मांगते हो उससे ज्यादा मैं करने की योग्यता I रखता want to हूँ। start church in Sultanpur. मैं सुल्तानपुर में कलीसिया शुरू करना चाहता हूँ। God is saying, hey, you'll start everywhere in Varanasi. और कहता है कि आप वाराणसी में सब जगह आप तैयार Oh, करोगे। sorry, Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में। And you say, I want to start in Uttar Pradesh, many churches. तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मैं बहुत सारे कलीसियों को बनाना चाहता God हूँ। will say, I'll take you to all across India. मैं परमेश्वर कहता है कि तुमको मैं इस पूरे भारत देश में लेकर जाऊंगा। And then you go all over India. God will say, hey, now get ready, get your passport and your visa ready. I'm going to take you to different countries. और फिर परमेश्वर कहेगा कि ठीक है अब तुम भारतवर्ष में आ गए, अब तुमको अपने वीजा को पासपोर्ट को तैयार रख, मैं तुमको दूसरे देश में ले जाने वाला हूँ। I thought about Sultanpur, मैं तो सुल्तानपुर के बारे में सोचा था, but God's was exceedingly abundantly, और परमेश्वर एकदम सामर्थ्य रूप से बहुतायत से more than we can ask and think, जितना उससे हम सोच सकते हैं और मांग सकते हैं, more than we can imagine. उससे बढ़कर जितना हम कल्पना कर सकते And I हैं। want to pray this over all of you. और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इसको आप सबके लिए। Right? I may not see you again. मैं हो सकता है कि आपको ना देखूं दोबारा, So I'm not sure on that Sunday will I come or no, but if I don't see you again, I want to speak this blessing over each one of you. और मैं नहीं निश्चित हूं कि उस रविवार को मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन मैं इस आशीष की प्रार्थना आप सबके ऊपर करना चाहता हूं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just thank you for this entire course. प्रभु जी इस पूरे पाठ्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, Thank you for the local church. और स्थानीय कलीसिया के लिए धन्यवाद Thank you करते that you are calling us the church. हैं। और प्रभु जी धन्यवाद कि आप हमें कलीसिया बताते And I हैं। pray for each and every one of us here, each and every student. और जितने भी यहाँ पे छात्र हैं उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता And हूँ, I declare your word. और आपके वचन की I घोषणा करता declare हूँ, your promises. आपके वादों को घोषणा करता Declare हूँ। Ephesians 3:20 और प्रभु जी इफिसियों के 3:20 को प्रभु that जी you are इसके लिए able घोषणा to करता हूँ, do ताकि आप योग्य है exceedingly, वो बहुतायत से करने के लिए, abundantly, बहुतायत से सारी बातों more करने than के they लिए, can ask, जितना वो मांग सकते उससे more ज्यादा, than they can think, उससे जो सोच सकते उससे बढ़ more के, than they can imagine. जितना ज्यादा वो कल्पना By कर the सकते हैं, power of your Holy पवित्र Spirit, आत्मा के सामर्थ के we द्वारा। just declare your fire, your anointing upon their प्रभु जी lives. आपके आँख को, आपके अभिषेक को उनके ऊपर हम That घोषणा करते even हैं, as they go from here, जबकि वो यहाँ से they will जाएंगे discover the call of God upon their life. और अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को Lord, खोज that they पाएंगे, will begin new ministries, ताकि वे नए सेवकाई को शुरू a करने new पाए, work of God. और परमेश्वर के नए काम को Wherever शुरू they करने are, पाए, God, जहाँ कहीं भी वे there will हों, be a testimony वे गवाही बनेंगे of your power आपके शक्ति के लिए that's working in their lives. जो उनके जीवन में काम कर रहा I है। pray your blessing, O God, आप परमेश्वर आपके आशीष के लिए that you will प्रार्थना go करते हैं, before them. आप उनके आगे You will जाएंगे make every crooked path straight. और सारे मार्ग को आप सीधा Fill करेंगे। each of them with your wisdom, knowledge, and understanding. प्रभु जी हर एक व्यक्ति को आपके बुद्धि, आपके ज्ञान से, आपके समझ से भर देंगे And may your name be glorified, O कि God. आपके नाम को महिमा मिले, Use us, Lord, और हमें उपयोग करें पिता for the परमेश्वर, kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य And के we लिए, will build your church, ताकि हम आपकी कलीसिया को and the बनाएं gates of hell shall not prevail कि against it. नरक का कोई भी द्वार उस पर प्रबल ना होने पाए। This is your promise. यह आपकी वचन है पिता And we परमेश्वर, receive it, और Lord. इस वादे को हम ग्रहण करते We हैं। thank you. हम आपका धन्यवाद करते हैं We speak a blessing over each one of them. और प्रत्येक के ऊपर यह आशीष की घोषणा करते हैं। We thank you, Father. धन्यवाद करते हैं We पिता, give you all the glory. सारी महिमा, We give you all the honor and praise. सारा सम्मान, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. All right. ठीक है, Thank you so much. बहुत धन्यवाद।